رواں سال حج کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب غیر ملکیوں کے لیے حج پالیسی کا اعلان 15 شوال یا 27 مئی تک کرے گا۔ اگر اسٹرازینکا اور فائزر ویکسین لگوانے کی شرط عائد کی گئی تو پاکستانی حج کر سکیں گے۔ عازمین کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسینیشن کی وجہ سے کوئی پاکستانی حج کرنے سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پشاور میں کم لاگت فیملی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان میں غریب کے لیے جیل اور طاقتور کے لیے این آر او ہے، اسی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہوا۔ آج سارا مافیا اکٹھا ہو کر این آر او لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرار ہونے والوں کو واپس لانے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ماس ویکسینیشن سینٹر کا دورہ۔ کرونا پابندیوں پر نرمی کا انتیا دے دیا۔ کہا، کرونا ویکسینیشن بالکل محفوظ ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ عوام جلدی ویکسین لگوائیں تاکہ کاروبار کھلیں۔ کاروباری بندشیں لگانا اچھا نہیں لگتا، کوشش ہے جلد کچھ بندشوں میں نرمی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کو کوئی فرق نہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چودھری سرور نے گورنر ہاؤس لاہور میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مشاورتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میں ایسی حکومت کا حصہ نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے۔ اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال، بیرسٹر عامر حسین اور سینیٹر ولید اقبال اور خرم نواز گنڈا پور سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں، ماہرین تعلیم اور سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے انجمن تاجران کا جمعے کو کاروبار بند رکھنے کا اعلان۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویز ملک اور انجمن تاجران لاہور کے صدر نے لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ کہا، فلسطین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، حکمرانوں کو جگانے کی ضرورت ہے، جنگ کرنا پڑی تو تمام مسلمان اکٹھے ہو کر چلیں گے۔ انہوں نے دکانداروں سے اپیل کی کہ یہودی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور موجود اشیاء تلف کر دیں۔ پنجاب میں کرونا ویکسین کا اسٹاک ختم ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں روزانہ تقریباً 1 لاکھ شہریوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ صوبے کی عوام کے لیے وافر مقدار میں ویکسین دستیاب ہے۔ اسٹرازینکا ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ پنجاب کی عوام کو محفوظ اور معیاری ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پاک افغان سرحد پر ٹریڈ زون کا قیام، امریکہ کو پاکستان کی حمایت درکار۔ امریکی سینیٹر کرس ہالینڈ کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر 3 ٹریڈ زون بنائے جا رہے ہیں۔ ٹریڈ زون بنانے کے لیے پاک افغان سیاسی حمایت درکار ہے۔ امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تعلقات کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں اور ٹریڈ زون کے قیام کے لیے پاکستانی قیادت سے رابطے میں ہیں، جبکہ سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی میں پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک پیج پر نظر آئے۔ مذمتی قرارداد اسپیکر اسمبلی نے خود ایمان میں پڑھ کر سنائی۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس میں چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ نیب کا کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں بلکہ صرف ریاست سے تعلق ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے۔ نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے مالیت کے 1269 ریفرنسز عدالت میں دائر کیے۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کا انعقاد مشکلات کا شکار۔ متحدہ عرب امارات حکومت کی سخت شرائط کے باعث پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز میں رکاوٹ بننے لگی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق وقت کی کمی کے باعث کھلاڑیوں اور آفیشلز کی ویکسینیشن سمیت سفری معاملات کو پورا کرنا ممکن نہیں۔ معاملے پر کرکٹ بورڈ نے فرنچائزرز مالکان سے مشاورت کے لیے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ خانپور مہر ڈہر کی داد روڈ کے رہائشی نوجوان سندیپ کمار نے مال گاڑی کی زد میں آ کر خودکشی کر لی۔ نوجوان کی لاش ملنے پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو ڈیر کی اسپتال پہنچایا اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔
सहवन पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों और जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 जुआरियों और 2 मंशियात फरोशों समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP जामशोरो जावेद अहमद बलोच की खुसूसी हिदायत पर SHO सहवन की सरबराही में सहवन पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी। और डिस्कोट पतंगबाजी को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला जारी। ऐलान में दुकानदारों और लोगों को इंदिया दिया गया कि पतंग फरोख्त करने और उड़ाने से परहेज करें। बासूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर वालिदैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में गरीब के लिए जेल और ताकतवर के लिए एनआरओ है। आज सारा माफिया इकट्ठा होकर एनआरओ लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। उनका कहना था कि फरार होने वालों को वापस लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान खान का कहना था कि अल्लामा इकबाल हमारे नजरियाती लीडर थे। पाकिस्तान ने इस्लामी फलाही रियासत बनना था। पाकिस्तान बहुत बड़े ख्वाब का नाम था, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इस ख्वाब को समझा ही नहीं। हमारे मुल्क का मकसद क्या था और हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं। अपने खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कभी किसी जमात को दूसरी बारी नहीं देता, लेकिन तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की वजह से हमें 2/3 अक्सरियत मिली। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक इस सूबे में गुर्बत कम, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। पाकिस्तान में पानी के मसले पर बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आने वाले वक्त में पानी की कमी दरपेश हो सकती है। इसका हल तो ये था कि 50 साल कबल ही डैम्स बना लिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि 2028 तक पाकिस्तान में महमद और भाषा समेत 10 डैम्स बनेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का मास वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। कोरोना पाबंदियों में नरमी का इंदिया दे दिया। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन बिल्कुल महफूज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आवाम जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुलें। उन्होंने कहा कि पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को कोई फर्क नहीं, वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है। अभी तक वैक्सीनेशन का तजुर्बा अच्छा रहा है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं आए। NCOC की टीम ने ईद के दिनों में भी काम किया। उन्होंने कहा कि F9 पार्क में भी वैक्सीनेशन सेंटर का इंतजाम किया है। कोशिश कर रहे हैं कुछ बंदिशों में नरमी करें। उन्होंने कहा कि पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। माजी की हुकूमतों में बड़े स्कैंडल सामने आए, लेकिन किसी ने इंक्वायरी नहीं की। क्या पहले चीनी महंगी नहीं हुई, पेट्रोल का बहरान नहीं आया? इमरान खान कभी ये नहीं देखते कि उनको सियासी फायदा होगा। जहांगीर तरीन ने कहा है कि इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी हैं, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे। ये तासुर गलत है कि हमने PTI को छोड़ दिया। जहांगीर तरीन ने साथियों के हमरा लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 31 मई तक जमानत में तोसी हो गई है। FIA को मुकम्मल मनी ट्रेल दे रहे हैं। मेरे ग्रुप के साथ पंजाब हुकूमत का रवैया नामुनासिब है। पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे। ये तासुर गलत है कि हम PTI को छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतों में 31 मई तक तोसी कर दी गई। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में अबूरी जमानत के मयाद खत्म होने के बाद जहांगीर तरीन अपने हम ख्याल ग्रुप के हमरा सेशन अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समात पर हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। शेख रशीद का कहना है कि जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात तो होते रहते हैं। जुमे को लाल हवेली के बाहर फलस्तीन से यकजहती के लिए जलसा होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक नालालई और दूसरा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल है। ये दोनों बन गए तो रावलपिंडी मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर फैसल का मशकूर हूँ, वो माँ बच्चा अस्पताल देखने के लिए आए। कैंसर का भी एक डिपार्टमेंट होगा। 16 साल से जो काम रोका हुआ है वो 2 साल में 80% तक मुकम्मल किया। 6 माह के अंदर कोशिश करेंगे कि एक और OPD चल जाए। मशीनरी को 100 बेड के साथ चला दें। अंग्रेज दौर के बाद ये मॉडर्न अस्पताल होगा। शेख रशीद का कहना था कि सऊदी अरब का दौरा बहुत कामयाब हुआ। सऊदी अरब से ऐसे ताल्लुकात होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जुमे को लाल हवेली में फलस्तीन के हवाले से जलसा होगा।
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں بلکہ صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بدعنوانی کی انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے۔ نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے مالیت کے 1269 ریفرنسز عدالت میں دائر کیے۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت نے اپوزیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ماڈل دیکھنے کی دعوت دے دی ہے۔ ووٹنگ مشین کے دوران ووٹ ڈالنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے۔ تمام جماعتیں بیٹھیں اور متفقہ فیصلہ کریں۔ فواد چودھری نے بابر اعوان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن اصلاحات پر تمام جماعتیں بیٹھیں اور متفقہ فیصلہ کریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 25 سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ پولنگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بروقت نتیجہ نہ آنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ مشین کے لیے 36 شرائط دی، تمام پوری کر دی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لینا چاہیے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ انتخابی نظام سے خامیاں دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تو اختیارات الیکشن کمیشن کو سونپ دیے۔ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ووٹنگ مشین کا ماڈل دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ جدید تکنیک اپنانے کی بھی ہدایات کر دی ہیں۔ عثمان بزدار نے محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں ضروری خالی اسامیوں پر ایڈ ہاک بھرتیوں کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ تعمیرات اور مواصلات کی کارکردگی اور فیوچر پلان سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ سیکریٹری CNW نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں CNW کے 1027 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں گے، جبکہ ناقص کارکردگی پر 144 آفیسرز اور اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی گئی ہے۔ عثمان بزدار نے محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں ضروری خالی اسامیوں پر ایڈ ہاک بھرتیوں کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران حکومت میں ہونے والی کرپشن معیشت کی تباہی کی وجہ ہے۔ جس ملک کا حکمران کرپٹ ہو وہاں کی معیشت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم وزیروں اور مشیروں کو قربانی کا بکرا بنا کر کرپشن پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ عمران خان صاحب، آپ کو 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ ٹیکس بڑھا کر ٹارگٹ پورا کرنے کا ڈرامہ کرنے والے ملک لوٹ رہے ہیں۔ عالمی ادارے ملک میں کرپشن میں اضافے کے انکشافات کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے، لیکن انہیں لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی ہے۔ برطانوی شہریوں نے فلسطین کے حق میں جو آواز بلند کی، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے رسمی طور پر فلسطین کے ایشو کو ایڈریس کر لیا۔ پارلیمنٹ میں دونوں پٹیشن پر 14 جون کو ڈیبیٹ ہوگی۔ برطانوی شہریوں کی طرف سے فلسطین کے ایشو کو اٹھانے پر پارلیمنٹ نے فلسطینی ایشو کو ایڈریس کر لیا، جس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے رسمی طور پر فلسطین کے ایشو کو تسلیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں سماعت مقرر کر لی ہے۔ پارلیمنٹ میں دونوں پٹیشنز پر 14 جون کو ڈیبیٹ ہوگی۔ فلسطینی بھائیوں پر ظلم و بربریت اور قبلہ اول بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے پر سانگلہ ہل کی صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف سانگلہ ہل کی صحافی برادری بھی سراپا احتجاج بن گئی اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم اور بربریت اور وحشیانہ تشدد اور مسلمانوں کے قبلہ اولو پر حملہ کرنے کی پرزور مذمت کے لیے سانگلہ ہل کی صحافی برادری کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی تصویر پریس کلب سانگلہ ہل اور ایمرا کیف سے شروع ہوئی، جس کی قیادت تصویر پریس کلب سانگلہ فیصل راجپوت، صدر ایمرا ندیم اختر بٹ، سرپرستی اعلیٰ حاجی عبدالرزاق اور سینئر صحافی زاہد انصاری خضر یاد کالو نے کی۔ ریلی میں سانگلہ ہل کی صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی
रैली के शुरा ने सख्त अल्फाज में इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत की और UNO की खामोशी को आड़े हाथों लिया और मुतालबा किया कि मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए और देरपा अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। रैली के शुरा ने इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली तहसील प्रेस क्लब से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस तहसील प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर फलस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ जुल्फकार संधू, 51 न्यूज़, सांगला हिल। फलस्तीन के मुसलमानों पर मुसलसल मुजालिम ढहाए जा रहे हैं। हमलों के दौरान बच्चों और खातिन समेत सैकड़ों अफराद शहीद हो गए और हजारों की तादाद में जख्मी हैं। इस बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है और यही सिलसिला पाकिस्तान में भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। फलस्तीन के मुसलमानों, तुम अकेले नहीं हो, पूरी उम्मत आपके साथ है। मजलूम और बहादुर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी दुनिया में मुजाहरे जारी हैं और ये सिलसिला पाकिस्तान में भी बतदरीज रवां दवां है। हम क्या चाहते हैं? फलस्तीन पे जुल्म, फलस्तीन पे जुल्म, कश्मीर पे जुल्म। आज इस्लामाबाद में भी शहरियों की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस हवाले से उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद किया जाए, मुसलमानों पे होने वाला जुल्म जो है वो ख़त्म किया जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मुसलमान हैं उनको सेफ़ सिक्योर लाइफ ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है, उसकी हिफाजत हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। ये बुनियादी तौर पर जी रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी है। इसमें स्कूलों के बच्चे भी हैं, इसमें घरेलू ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, इसमें रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं, सिविलियन भी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट भी हैं। और ये वो लोग हैं जो कि जिनका दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है और जो चाहते हैं कि फ़लस्तीन को अपने हकूक़ मिलने चाहिए, इसराइल का जुल्म वहाँ पर बंद होना चाहिए। और जो ख़ास तौर पर पिछले 10 दिन से जो फ़लस्तीन में और ख़ास तौर पर जो गाज़ा में हो रहा है उसको फ़िलफ़ौर रुकना चाहिए। खा उसके लिए अमेरिका को, यूरोप को, UN को या इस्लामी ममालिक को कोई भी रोल अदा करना पड़े, लेकिन इसराइल की ये जारहियत बंद होनी चाहिए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए थे और कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। एहतजाज का मकसद ये है, देखिए कौंची ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ये रैली हो रही है और यहाँ पे सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैली का सिर्फ एक मकसद है कि हम आलमी बरादरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसराइल के मजालिम के इस दौर में फ़लस्तीन अकेला नहीं है बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हर आवाम, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ हम कदम है और हम किसी भी सतह पर, आलमी सतह पर ये जो जारियत हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल जो पैलेस्टाइन पर मज़ालम कर रहा है वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम सबको मुसलमानों को चाहिए इकट्ठे होकर एक जहाद करें उनके ख़िलाफ़ और उनको ये सबक सिखाएं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ये हमारी गैरत का मसला है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, शहादत, बच्चों की शहादत हो रही है, ख़ातीन की शहादत हो रही है, ये हम नहीं बर्दाश्त करते। चौक में एक प्रॉपर और मुनज़्ज़म एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फ़लस्तीन के हक़ में नाराबाजी भी की गई और जो मुजाहिरीन थे उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी थे। तमाम मुजाहिरीन में हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन और मर्द हज़रात मौजूद थे। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ ज़िशान यूसुफजई, चैनल 51, इस्लामाबाद। मंडी बहाउद्दीन के गांव कोट मुल्तान वाला का रिहायशी नौजवान नहर RQ लिंक में नहाते हुए गहरे पानी में डूबकर जहां बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने 4 दिन की मेहनत के बाद बिलाखिर लाश गहरे पानी से निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। लाश पहुंचने पर घर में सफ़े मातम बिछ गया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके मुल्तान वाला का रिहायशी 24 साला कैसर भट्टी दोस्तों के हमरा नहर RQ लिंक में नहाने गया, जहां से वापस घर न लौट पाया और नहर के पानी की नजर हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पाकिस्तान आर्मी के जवानों, पुलिस और रेस्क्यू 1122 की 4 दिन मेहनत के बाद आखिर आज सुबह पुलचक मानो से डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को वर्षा के हवाले कर दिया गया, जहाँ लाश कोट मुल्तान वाला पहुँचने पर सफ़े मातम बिछ गया। जलालपुर पीरवाला में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से ऊँटों की देखभाल के लिए फ्री वेटरनरी कैंप लगाया गया। वेटरनरी कैंप में ऊँटों का मुफ्त मुआयना किया गया। महकमे की जानिब से जानवरों को कीड़े मार अद्वियात पिलाई गई और ऊँट पालने वाले हजरात की तरबियत भी की गई है।
इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर का कहना था कि दुनिया भर में ऊँट की सबसे बेहतरीन नस्ल पंजाब में पाई जाती है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन नोशनमा के लिए महकमा लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब इकदाम कर रहे हैं। ऊँट का गोश्त और दूध लातादाद खूबियों की वजह से इंसानी सेहत के लिए पूरी दुनिया में मौजू तरीन करार दिया जा चुका है, जिसमें बीमारियों से लड़ने की बेपनाह सलाहियत उसे दूसरे जानवरों से मुमताज करती है। कैंप का मकसद ऊँट पालने वाले हजरात को ऊँट के दूध और गोश्त की अफादियत के बारे में आगाही देना और उनकी हौसला अफजाई करना था, ताकि ये लोग मजीद ऐसे तरीके से ऊँटों की परवरिश कर सकें। मुजफ्फरगढ़ जिले ताजर इत्तेहाद के मरकजी कायदीन की मोन शेख की क़यादत में DPO मोहम्मद हसन इकबाल से मुलाकात। DPO का कहना था कि ताजर इत्तेहाद का कानून पसंद होना और कानून की अमलदारी में बेहतरीन किरदार काबिल तहसीन है। ताजर इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था कि DPO मोहम्मद हसन इकबाल की मेरिट पसंद पॉलिसियों से जराइम पेशा नासिर के खौफ में मुब्तला हैं। अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल पर वो DPO को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि वो ताजर बरादरी की हकीकी नुमाइंदा हैं। कोरोना वबा के दौरान भी उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, जिसके तहत समाजी हलकों में उन्हें पिज़राई मिली, जबकि आइंदा भी वो अपना बेहतरीन मुस्बत किरदार जारी रखेंगे और शरपसंदी में मुलविस किरदारों की हौसला शिकनी की जाएगी। हासिलपुर मशहूर जमाना मंशियात फरोश अजमत उर्फ बज्जी का गुंडों के हमरा पुलिस सब इंस्पेक्टर के मकान पर कब्जे की कोशिश। वाक़े की मुज़ाहमत पर मुलजिमान की तरफ से सरेआम फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग से शहर भर में खौफ व खिरास की फजा पैदा हो गई। मुतासिरीन का कहना है कि सरेआम असलहा लहरा कर और फायरिंग करके दहशतगर्दी की मिसाल कायम की गई है, जबकि पुलिस ने जानबूझकर दहशतगर्दी दफात शामिल न की। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिमान मुतासिरीन पर तशद्दुद करने के साथ साथ असलहा लहराते फिर रहे हैं। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जलालपुर पीरवाला में डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डकैत शहरी से 4 लाख रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। मुजाहमत पर डकैतों की फायरिंग से टांगों में गोलियां लगने से शहरी जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला बस्ती ढोड़ा वाले पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डकैत शहरी से 4,15,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। मुजाहमत पर डकैतों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में टांगों पर गोलियां लगने से कलीमुल्ला नामी शहरी जख्मी हुआ। जख्मी को रेस्क्यू ने फौरी तिबी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैंक जो पैसे खेनते मैं आया भाई फोन किते भी नहीं बामड़ चाहिए मैं रस्ते बिरा हफीज फोन किते जो इतना अली पर मोड़ देवने पैसे वसले नहीं गड्डी आई खड़ी आई अली पर मोड़ कोली में मुड़ी है अली पर सदा दो अगू थू ठोरी कने 1 to 5 ते 2 बंदे आ गए। उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मैं मोटरसाइकिल भजाए, उन्होंने मोटरसाइकिल को फायर तले मारे। मजलूम फ़लस्तीन के हक में पूरी दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुसलमान भी फ़लस्तीन के दुख में बराबर के शरीक हैं और अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कोशां हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद में तुलबा की जानिब से एक रैली निकाली गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफज़ई से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक इस्लामाबाद में। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। अब एक तुलबा तंजीम के इंतज़ाम एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है फ़लस्तीन के हक़ में। इस प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं। जुड़वा शहरों के जितने तालिब इल्म हैं वो कोविड की वजह से अपने अपने इलाकों में थे, लेकिन स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं ताकि फ़लस्तीन के साथ और मुसलमानों के साथ अपनी इज़हार यकजहती करें। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।